दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने ट्राई ज़रूर किया। आते हैं इस क्वेश्चन का अभी जवाब देखते हैं अभी। A number is decreased by 4 and divided by 6. The result is 9. What would be the result if 3 is subtracted from the number and then it is divided by 5? तो पहले हमें वो नंबर पता करना है। Let that number be x. x is decreased by 4 यानी उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हो चुका है एंड डिवाइडेड बाय 6। जो भी रिजल्ट है उसे 6 से डिवाइड करने पर द रिजल्ट इज 9 implies x minus 4 is equal to 9654 implies x is equal to 58। 58 वो नंबर है। अभी हमें चाहिए what would be the result if 3 is subtracted from the number। तो 58 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें and then it is divided by 5। So it will be 55 by 5 which is 11। Hence option D। Option D is the right answer। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। If the digit in the units place of a 2-digit number is halved। Okay, तो पहले हम 2-digit number लिख लेते हैं 10x plus y। If the digit in units place is halved यानी y बन जाएगा y by 2 and the digit in tens place is doubled यानी tens place का digit हो जाएगा 2x। It is doubled। The number thus obtained यानी ये number is equal to the number obtained by interchanging the digits। Interchanging is again units place को tens place में लाइए और tens place को units पे। Which of the following is definitely true? तो हमारे पास ये equation है, इसे solve करते हैं। 20x plus y by 2 is equal to 10y plus x। 40x plus y is equal to 20y plus 2x। तो 40x ये 2x यहाँ ला लीजिए minus 2x will be 38x is equal to 20y minus y which is 19y। तो 2x is equal to y। देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। Digits in the units place and tens place are equal। No, x is not equal to y। Sum of the digits is a 2-digit number। We can't tell this for sure क्योंकि हमें x plus y का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ऑप्शन सी digit in the units place यानी y is half of the digits in tens place। No, that is wrong। Then the last option यानी option D is a digit in the units place is twice the digit in tens place। Digit in the units place y is equal to twice the digit in tens place। Yes, this is the right option। Option D। If the two digits of the age of Mr. Manoj are reversed, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी age of Mr. Manoj as m is equal to 10x plus y। Okay, if the two digits are reversed, then the new age so obtained is the age of his wife। So wife of Manoj WM लिख देते हैं is equal to 10y plus x। ये digits interchange करने पर wife की age आ जाएगी। 1/11 of the sum of their ages is equal to the difference between them। So 1/11 of the sum of their ages is equal to the difference between their ages। अब यहाँ पर या तो ये आएगा यहाँ या तो ये आएगा, डिफरेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने कहा है कि इफ मिस्टर मनोज इज एल्डर देन हिज वाइफ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो ये गलत होगा। मिस्टर मनोज इज एल्डर, तो दिस इज द राइट डिफरेंस दैट वी नीड टू यूज। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस का चलिए देखते हैं। इसमें ये सब्स्टिट्यूट करिए 1/11 ऑफ 10x plus y plus 10y plus x is equal to 10x plus y minus 10y minus x। तो ये हो जाएगा 11x 11y। 11 कॉमन ले x plus y
ये 11 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 9x माइनस 9y, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x यहाँ पर ले जाएं, वो हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 10y, x by y is equal to 2 4s 2 5s, तो 5/4। तो x by y is in the ratio 5/4। ठीक है, चले अभी एज्यूम करें कि x is 5 and y is 4। x is 5 and y is 4, क्योंकि अगर हम x 10 लेते हैं, x कैन बी मल्टीपल ऑफ 5, मतलब इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो x कुड बी 10, y कुड बी 8, या 3 से करें तो x कुड बी 15 एंड y कुड बी 12। बट यहाँ पर कैच ये है कि मिस्टर मनोज की एज बस 2 डिजिट नंबर है, और अगर हम x को 10 लेते हैं और y को 8 लेते हैं, और y को अगर 8 लेते हैं, तो ये देखें मिस्टर मनोज की एज क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स 10 प्लस 4 यानी प्लस 8 यानी 108। तो दिस इज 3 डिजिट नंबर। तो इसके लिए x इज 5 एंड y इज 4, उसके बाद के सारे जो भी मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पर फिट नहीं होते हैं। तो x इज 5 y इज 4 लेने पर हमें मिस्टर मनोज की एज आ जाएगी, यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 लगाए तो कितना होगा 54। m is 54, Mr. Manoj is 54-year old and his wife is 10 times 4 plus 5, तो 45। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 9। Yes, option E is the right answer. A two-digit number is 7 times the sum of its digits. Again, let the two-digit number be 10x plus y. It is equal to 7 times the sum of its digits. If each digit is increased by 2, the number thus obtained is 4 more than 6 times the sum of its. तो यहाँ पर देखें each digit is increased by 2, इस तरीके से 2 ऐड हो जाएगा each digit को। The number thus obtained is 4 more, यानी 4 more than 6 times the sum of its digit, x plus 2 plus y plus। ओके, ऐसे क्वेश्चन सही से पढ़ें, इक्वेशन सही से फॉर्म करें तो आपका काम बहुत आसान हो जाए। फाइंड द नंबर, तो हमें इनिशियली ये जो n लिखा था हमने ये फाइंड आउट। ठीक है, वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 10x प्लस y प्लस ये 22 इज इक्वल टू 4 प्लस 6x प्लस 6y प्लस 24। x की वैल्यू यहाँ पर ला लें, 10x माइनस 6x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6y माइनस y हो जाएगा 5y प्लस 28 माइनस 22 हो जाएगा 6। ओके, ये एक इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। अभी इसे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 7y माइनस y। तो 3x is equal to 6y to x is equal to 2y। ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करें, x is equal to 2y। 4 times 2y is 8y is equal to 5y plus 6 implies 3y is equal to 6, y is equal to 2। y is equal to 2 आ चुका है, फिर x की वैल्यू क्या होगी, x is equal to 2 times 2, 4। Hence, our number should be 10 times 4 plus 2 which is equal to 42। Option A। चलिए इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। If A and B are positive integers such that 9a square, इसका मतलब है a square is equal to 12
a plus 96 and b square is equal to 2b plus 3. Then which of the following is the value of 5a plus 7b? तो हम पहले a and b फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में डालकर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट। तो इसे लिख सकते हैं 9a स्क्वेयर माइनस 12a माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अभी अगर आपको a का फॉर्मूला पता है, इसे a ले लें, इसे b ले लें, इसे c ले लें, साइंस के साथ लेना है, नेगेटिव साइंस के साथ। तो a इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस ऑफ माइनस 12 माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर या 12 स्क्वेयर सेम होता है, b स्क्वेयर माइनस 4ac by 2 times 9 2a। इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 12 प्लस और माइनस रूट 144। ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए इट्स बेटर टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विद दिस इक्वेशन। तो देखते हैं कि कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलता है क्या, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो रहता नहीं है कि आप सब करें मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं इस इक्वेशन को और से देखें। या इट्स डिविजिबल बाय 3, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3a स्क्वेयर माइनस 4a माइनस 30 is equal to 0। ओके, तो अगेन सेम a b c, यहाँ पर करते हैं वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू यानी माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स माइनस 32, तो ये प्लस हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। a is equal to plus 4 plus or minus 16 plus 32 times 12 would be 384 divided by 6. So a is equal to 4 plus or minus root 384 plus 16 हो जाएगा 9 10 root 400। So 20 divided by 6, which is equal to 4 plus 20 by 6 is 24 by 6, which is 4, and 4 minus 20 by 6 is minus 8 by, okay, बट उन्होंने कहा है कि a and b are positive integers, तो ये कैंसिल हो गया, a का वैल्यू इज 4। The value of a is thus 4। अभी आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, b स्क्वेयर माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। b स्क्वेयर माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, माइनस b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac by 2, that is equal to 2 plus or minus root 16 is 4 by 2, 2 plus 4 by 2 is 3, 2 minus 4 by 2 is minus, ये कैंसिल हो जाएगा because a and b are positive integers again, तो b का वैल्यू is 3, a is 4 and b is 3। तो हमें फाइंड आउट करना है 5a plus 7b का वैल्यू। तो 5 times 4 plus 7 times 3, 5 fours 20, 21, 41 is the right answer। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ हाफ ऑफ दैट नंबर। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमारा नंबर इज 10 ए प्लस बी, डिजिट नंबर रख लेते हैं, और इसका हाफ यानी n by 2 इज इक्वल टू 10x प्लस 1, इस तरीके से लिख लेंगे। दिस इज हाफ ऑफ दैट नंबर।
So the digit in tens in units place of a number is equal to the digit in tens place of half of that number. यानी b is equal to x. Okay, units place is equal to tens place. And the digit in tens place of that number a is equal to is less than the digits in units place of half of that number by 1. A is equal to y minus 1. If the sum of the digits of the number is 7, a plus b is equal to 7, then what is the number? If the sum of the digits is 7, then what is the number? तो इसमें से हमें एक इक्वेशन मिलेगा y minus 1 plus x is equal to 7, और ये भी देख लीजिए कि 20x plus 2y is equal to 10a plus b. ओके, a की जगह ये सब्स्टिट्यूट करिए 10 times y minus 1 plus b is x. So 20x plus 2y is equal to x plus 10y minus 10. अभी इसमें से हमें आएगा 20x minus x, 19x is equal to 8y minus 10. ये एक इक्वेशन है हमारे पास, और यहाँ पर एक है. इसे सिंप्लीफाई करें, x plus y is equal to 8. तो x is equal to plus 8 minus y. बस इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके यहाँ पर लिख रही हूँ. ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 8. तो ये यहाँ पर लिखते हैं 19x is equal to 8y minus 10. 8x is equal to minus 8y plus 64. तो ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 27x is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा 54, implies x is equal to 2. जब x का वैल्यू 2 आ गया है तो y क्या होगा? ये इक्वेशन से 2 is equal to minus y plus 8, y यहाँ लेके आइए, y is equal to 6. तो हमें दो वैल्यूज पता चल गए हैं, x is equal to 2, y is equal to 6. हमें पता करना है what is the number, ये n पता करना है. तो इधर क्या करें आप कि x और y के वैल्यूज a एंड b में सब्स्टिट्यूट करके उसे n में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या नहीं तो डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करिए. मैं ये यूज करूंगी क्योंकि ये इजी दिख रहा है मुझे. तो अभी नीचे आते हैं, n by 2 is equal to 10x plus y. n by 2 is equal to 10x plus y. That is equal to 10x क्या होगा? 20 हो जाएगा, plus y is 6, 26. n by 2 जब 26 है तो n होगा 2 times of 26. तो 2 6 12, 2 2 4 5, 52. तो हमारा नंबर है 52. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 2/5 of 1/3 of 3/7 of a number is 15. So let that number be x. उसका 2/5, उसका 1/3, ये सारे का 3/7 of this number is equal to 15. What is 40% of that number? तो पहले नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. 3 3 कैंसिल हो जाएगा. x 2 by 35 is equal to 15. x is equal to 35 times 15 by 2. इसे मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें 40% चाहिए. तो देखते हैं उसमें कैंसिल होने के चांसेस है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा आसान हो जाएगा. तो 100% of that number is this much, 35 times 15 by 2. तो 40% कितना होगा? 40 multiplied by 35
ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन times 15 by 2 and then divided by 100. ओके, 2 20 से कैंसिल होगा, 0 0 निकाल दीजिए, 2 5 5 3 35 times 3, 35 times 3 क्या होगा, 3 5 15, 3 3 9 10, 105. 105 is the right answer. तो none of these, यहाँ पे 105 है ही नहीं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि आपको सही जवाब क्या आया। इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं।